यू आर नॉट पंक्चुअल, और अल्लाह ताला एक मेरे को वाइफ शख्स बनाया जो लेट होने के बावजूद भी, पंक्चुअल नहीं होने के बावजूद भी आई वाज लिटिल बिट सक्सेस इन माय लाइफ। सर जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किलात आई ज़िंदगी में, तो मुश्किलात के बाद जब आपको सक्सेस फाइनली हासिल होगी तो आपको कैसा फीलिंग कैसे? यकीनन एक अच्छी फीलिंग आई, एक एहसास हुआ कि मैं आज अल्लाह ताला मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा करा है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और लेकिन साथ ही साथ अभी मैं अपनी एज के एतबार से बताना चाहूँगा, वी कैन नॉट से दैट कि हम एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब अगर इंसान ये सोच लेगा मैं मुकाम पे पहुँच गया समझो, तो फिर वहाँ से डाउनफॉल शुरू होना हो जाता है। सो अभी और आगे बढ़ना है। Success is not a destination but a formula built on hard work. Being a student, everyone aspires to succeed, but to become a successful person, it's not an easy task. During our motivational lectures throughout the curriculum, I used to hear about many successful personalities. I used to think to have an interaction with such kind of personalities. So today, luckily, I got an opportunity to have a conversation with whom we really believe a successful person in the field of education. So today in this podcast, I have the privilege of speaking with Mr. Muhammad Mahmood Ali Sohail sir, to whom we really believe successful, who has achieved great success in the field of education. He is not only the president of All India Ideal Teachers Association but also managed several schools. Despite of his busy schedule, he is always available for us and for just one call away whenever we need. So sir, I warmly welcome you to this session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for taking my interview towards share my experience. I think your questions will be mostly depend on the success. Yes. So thanks for that. I am very much excited to start this session and a little bit nervous as you're sitting in front of me. So shall I start the session? Yes. So sir, as our parents want us to achieve success and maybe you people hope the same from us. So my first question would be, what does success mean to you? See, actually, success, it's a very big definition when we talk about the success. So, in different areas, people will like to start their work. If they have any of the goal, they will try to work hard, and definitely when the people will work hard with the dedication and day and night, if they will work without taking proper rest, so they may have get the success in their goal. But having the proper planning for that, before making proper plan, and until and unless you have the confidence and energy, or what we can say, to bear the unsuccess condition, they cannot success in their life. Yes, sir, totally. I totally agree with you. जैसे कि किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें हमेशा उनको ही मिलती है जो मंजिलों की तलाश करते हैं, हमें भी मंजिल की तलाश है। तो ऐसे कौन से इक़दाम हैं, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो हमें अपनाना चाहिए जिससे हमें हमारा मकसद हासिल हो? Again, I will just say you one thing, that without making proper plan, so we cannot achieve any goal, we cannot succeed in our life. साथ ही साथ एक बात ये ज़रूरी समझूंगा मैं कि सबसे जो अहम इसमें रोल प्ले करता है वो है आपके सही वक्त पर सही काम। यानी कि समझिए, फॉर एग्जांपल आप, अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ तो स्कूल ही जैसे आपके मेरा एक्सपीरियंस रहा है और एक्सपेरिमेंट रहा है। तो जैसे स्कूल खुलता है, वर्क शुरू होता है जून के महीने में। अगर आपके वो स्कूल को आप स्टार्ट करना है तो कम से कम 8 महीने या 1 साल पहले उसकी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और इतना लंबा प्लानिंग के बाद डिफरेंट एक्सपेक्ट से आप इसके बाद वो काम करना पड़ेगा। तो वैसे किसी भी काम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर ओन एक्सपीरियंस। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्कूल और एनी स्कूल, if you belong to the teaching profession, so you have to get some more knowledge about how to work in admin, how to work as a teacher, how to work on the different position in the school. So then you can plan for the school. So without experience or without having proper knowledge, if you go for this any new step, so I don't think that immediately you will get success. There is a maximum chances for the failure. So proper planning and execution एंड एडवांस प्लानिंग, और साथ ही साथ हारने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ है या फिर ज़्यादा टाइम सक्सेस के होने के लिए कोई मसाइल आ सकते हैं, तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं। Yes, sir, wonderful hard work
And, Just my what next question. So my next question to you would be, how do you stay motivated during your challenging times? See, the very tough and the biggest motivation for me to become something in our life. So I have lost my father in the age of 10 years when I was studying in fifth grade. And when I just spending time with my mother, so I observed that she was very much worried about our future. And as we were three brothers and two sisters, including me, so she was very much worried, means how we'll study, खाने का कैसा होगा, रहने का कैसा होगा, पढ़ाई का कैसा होगा बच्चों का, ये तमाम चीज़ें सोचकर वो रातों में बैठ जाते थे कभी कभी. सो शुरू से आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर, हालात को समझता था मैं. तो मैंने आस्क कर व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई यू आर वरी, व्हाट यू आर थिंकिंग, यही सोचेंगे कैसा होगा आगे चलकर आप लोग का होगा. सो आई जस्ट व्हाई व्हाट आर माय आंसर के भाई यू जस्ट वेट, एनी हाउ जिस दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो हालात सुधरते रहेंगे. एंड द सेम टाइम इन माई रिलेशन लाइक रिलेटिव, जो मामू खाला फूफू वाला जो भी लोग होते हैं, दे वॉज लाइक वेरी रिच कंपेयरिंग टू अस. सो कभी कभी इग्नोर भी किया जाता था फाइनेंशियली जैसे आपके पावरफुल नहीं होने की वजह से. तो दैट वॉज द ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. सो आई डिसाइडेड माई सेल्फ एक ऐसे पोजिशन में हम पहुँचेंगे जहाँ पर लोग हमको हर काम में शामिल करेंगे. सो दैट वॉज द ग्रेट थिंग वी अडॉप्टेड गुड एजुकेशन. जब अच्छी तालीम हासिल हुई तो वो जो लोग इग्नोर करना सोचते थे वो अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ाने के लिए भेजे ट्यूशन. फिर जब हम अपना खुद का सेटअप स्कूल वाला स्टार्ट किए तो उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़े. ऑटोमेटिकली वे लाइक जब बच्चे पढ़ के काबिल हो गए, माई सेल्फ एंड माई सिस्टर्स एंड इवन सम ब्रदर्स ऑल्सो, उस वक्त जैसे आपके हर फंक्शन हर इवेंट में सबसे पहले हमको याद किया जाने लगा, हर मशवरों में हमको बुलाया जाने लगा. दे आर जस्ट डिसाइडेड देमसेल्फ कि भाई इनको साथ लेके चलना है तो उसमें हमारी भी कामयाबी है. सो वी अचीव दैट पोजीशन. तो द ग्रेट वेपन फॉर दैट वाज रियली इट वाज एजुकेशन. सो माय मैसेज फॉर इवन अदर पीपल कि अपने आप को ऐसे मुकाम में लेके खड़ा करो कि लोगों की आपकी ज़रूरत पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक इसमें हम कामयाब हुए. So that was my motivation. Ignoring by some richest people, my relatives and all other people, and my mother's उनकी जो परेशानियाँ, उनकी जो तकलीफ थी, उसको दूर करना ही मेरे लिए मोटिवेशन का जरिया बना. तो सर जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किलात आए ज़िंदगी में, तो मुश्किलात के बाद जब आपको सक्सेस फाइनली हासिल होगी तो आपको कैसा फीलिंग कैसे आई? यकीनन एक अच्छी फीलिंग आई, एक एहसास हुआ कि भाई आज अल्लाह ताला हमको इस मुकाम में लेकर खड़ा करा है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है. और लेकिन साथ ही साथ अभी मैं अपनी एज के एतबार से बताना चाहूँगा वी कैन नॉट से दैट कि भाई हम एक मुकाम में पहुँच चुके हैं. क्योंकि जब अगर इंसान ये सोच ले कि हम एक मुकाम में पहुँच गए समझो, तो फिर वहाँ से डाउनफॉल शुरू होना हो जाता है. सो अभी और आगे बढ़ना है, यही हमारा जैसा आपके क्या है मकसद होना चाहिए. जो पानी एक जगह ठहर जाता है तो यकीन वो पानी में गंदगी आ जाती है, यानी कि जम्स वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर, वो पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं हो जाता है. और जो दुनिया है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. जस्ट लाइक जो एक रेस जिस तरह से होती है, तो उस तरह से अगर आप एक जगह रुक जाते समझो तो दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं. तो आपको भी ये चाहिए कि वो आगे बढ़ते रहें. तो यकीनन आई फील लाइक वेरी गुड एट दिस पोजीशन. लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जैसे आपके क्या आगे बढ़ना, हमारे वजह से दूसरों को भी फायदा पहुंचना, ये मकसद से मजीद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ने का सोच रहे हैं. और इंशाल्लाह इसके वजह प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग है. जी सर, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ. जैसे कि कहते हैं कि चल पड़े हो कामयाबी के सफ़र पे तो हौसला रखो, सहरा कहीं कहीं समंदर भी आएंगे. उसी तरीके से माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, एवरी सक्सेस स्टोरी हैज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर. So what role does failure played in your success story? See, Alhamdulillah, in the year 2002, I got government job. So it was like a great achievement for me getting a government job, good position. But वहाँ का जो माहौल था, I got this opportunity in Kadapa. So that time Andhra Pradesh and Kadapa both was one state only. Means Andhra Pradesh and Telangana. बोथ वॉज लाइक वन स्टेट. सो वहाँ जाने के बाद वहाँ के माहौल के अंदर मैं अपना को सेट नहीं कर पाया, जिसका बड़ा रीज़न वहाँ का खाना पीना रहन सहन नहीं था. बट
ज़्यादातर जैसे आपके यहाँ का जो देखिए भाई बहनों से जो मोहब्बत और मदर के साथ गुजरा हुआ वक्त, इसके साथ साथ जो है आपके बड़ा फ्रेंड सर्कल, ये तमाम चीज़ें होने के बाद आ, एक जॉब को यहाँ जो प्राइवेट जॉब चल रहा था उसको छोड़कर आई वेंट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। और काफ़ी जैसे आपकी एक बड़ा खुशी का मौका था। सब जगह से मोहनबादियाँ आ गए थे, काफ़ी लोग खुश हो गए थे खानदान में कि भाई कम एज के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिला है। आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 19 और 20 ईयर्स। इतनी कम एज में इतना अच्छा जॉब लगाया बोले सब लोग खुश थे। लेकिन रियली वहाँ पर जाने के बाद में काफ़ी जैसे आपके मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और वो जैसे आपकी जॉब एक साल के अंदर अंदर मैं छोड़कर वापस आ गया। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। इतने वहाँ से एक ऐसा टाइम था जब मेरे छोटे भाई जैसे आपके किसी भी काम पर नहीं थे। बड़े भाई जो गवर्नमेंट जॉब थे वो जैसे आपके किसी रीज़न से सस्पेंड हो गए थे। और उस वक्त जैसे आपकी छोटे बहन की शादी हो गई थी एंड इवन शी वॉज अर्निंग फॉर द फैमिली। शी वॉज टीचिंग इन स्कूल एट द सेम टाइम ट्यूशन क्लासेस भी चलाते थे। सो व्हेन आई केम बैक देयर वाज अ जीरो लाइक इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। एक रुपये की आमदनी थी। ऐसा वक्त में जैसे आपके छोड़ कर आया तो वो लगा कि सबसे बड़ी जो आपकी नाकामी इस वक्त हमारे सामने है। अब फिर यहाँ से उठकर कोई आगे जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज हमको नजर आ रहा था। सो आई कंटिन्यू माई टीचिंग इन प्राइवेट स्कूल्स एंड द सेम टाइम लाइक ट्यूशंस एंड ये तमाम काम जो आपके हमारा फिर दोबारा वापस इसके ऊपर आए। बट अलहमदुल्ला दैट टाइम इन द ईयर 2003 we plan to start a school and alhamdulillah after 6 months in the year 2004 with पार्टनरशिप we started school but later on वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। कुछ सालों के बाद फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि I started my own school in the year 2008। so जब बिल्कुल ज़ीरो इनकम में हम आके खड़े हैं तो ऐसा लगा कि अब सभी तरफ नाकामी नज़र आ रही है हर तरफ से। लेकिन उस वक्त पे आपके जो कुछ करने का जो जज्बा था यानी कि वो चीज़ अब जज्बा ख़त्म नहीं हुआ था, हालात ख़राब हुए थे। तो मैं जब कड़वा छोड़कर वापस आया था तो कई लोगों के सवाल उठे थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर आया, वेरी बैड, बहुत बुरी बात है ये। गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर क्या ऐसे हालात थे। तो वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया। तो जब उस वक्त लोग सवाल पूछे कि वैसा क्या चीज़ थी जो आपको पसंद नहीं है वहाँ पर। इन योर क्वेश्चन मेनी टाइम यू यूज अशार। सो आई विल टेल यू वन शेयर टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पत्थर के सनम, पत्थर के खुदा, पत्थर ही इंसान पाए हैं। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कड़वा। दो पीपल वाज वेरी गुड। पत्थर के सनम, पत्थर के खुदा, पत्थर ही इंसान पाए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। तो वहाँ के रहन सहन के लिए ऐसे हालात लगे कि भाई अब भागो ऐसे जान बचा कर। आई केम बैक एंड स्टार्टेड अगेन लाइक टीचिंग then gradually like we started one school, but I can't say that that was my own school, that was not my own property. I was working for someone. Later on I realized that I still am working for someone. So again I am motivated myself to establish a new school. Alhamdulillah in the year 2008 I started my own school in Landaros area. So yes, sir. My next question to you would be related to, as you shared few points, that few schedules that we should follow to achieve success. So what were the habits that contributed to your success the most? For this question, I don't think any of the good habit made me the great success. Okay. क्योंकि मैं तो समझता हूँ मेरे तौर पर दुनिया का वो मैं वाहिद शख्स हूँ जो पंक्चुअल होने के बाद भी और क्या बोल सकते हैं कमिटमेंट पूरा किसी काम को लेकर इमीडिएटली नहीं करने के बावजूद भी किस हद तक जिस आपके मैं अपने प्रोफेशनली जो आपके सक्सेस उसकी वजह ये है कि पंक्चुअलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जब काम करने लग जाते हैं समझो तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड दैट यू आर द 11th मैन, 11th और 12th मैन। कोई भी जो गेम्स होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा खिलाड़ी को रखते हैं। जब पूरे 11 जो 11 जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा प्लेयर को रखा जाता है। जब उनसे कोई काम नहीं होता तो वो काम के लिए अपने दूसरों को जब वापस बुलाया जाता है। आई थॉट माई सेल्फ के भाई आई थिंक माई सेल्फ के भाई से जो आपके मेरा भी रोल है, कोई काम पंक्चुअलिटी से होता तो नहीं लेकिन जब वो काम करने को बैठते समझो तो फिर पीछे पलट के नहीं रहते। इवन द सेम एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वाज राइटिंग एसएससी एग्जामिनेशन एंड इवन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, पेपर के स्टार्ट होने से पहले 5-10 मिनट खाली इधर का उधर का जायजा लेता हूँ मैं, कौन कहाँ बैठे हुए, क्या चल रहा है, कैसे हालत है।
अब लोग पूछते हैं कि मैं पढ़ के आया नहीं, तो हेल्प करते क्या, बताते क्या, मतलब मैं खुद फ्री बैठा हूँ। सो वंस आई रीड ऑल क्वेश्चंस, तो जब आंसर लिखना शुरू करता हूँ समझो, तो एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटे से पहले फिर नज़र उठा अपनी जो गर्दन को भी ऊपर नहीं उठाता हूँ, उतना स्पीड से मेरा काम करते चले जाता हूँ। और कभी कभी स्कूल में करेक्शन का मौका आ जाता है समझो, तो 4 दिन का टाइम दिया जाता है मैनेजमेंट, जैसा हमारे स्कूल के फरीद मैडम है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देकर 4 दिन में करेक्शन करके लाना है। इब्तदा के जो 3 डेज होते हैं उसमें हम खेल कूद में, क्रिकेट में, कैरम में, दोस्तों में गुजार देते थे। आखिरी का जो 1 दिन होता है वो जैसा पे मगरिब का नमाज पढ़ के काम शुरू करते हैं, फजर से पहले तक कुछ 4 दिन का करेक्शन पूरा खत्म कर देते हैं। तो लाइफ में पूरे काम हमारे इसी छुए। अभी जो आप यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ये 8 दिन से चल रहा था ये प्रोग्राम। अभी जैसे आपकी फ्लाइट मेरी तैयार है, 2 घंटे 1 घंटे में मेरी रिपोर्टिंग है और मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई होप आई विल बी देयर ऑन टाइम। पब्लिक की दुनिया की नज़र में वो लेट है, बट मेरी नज़र में आई एम पंक्चुअल। तो लाइफ में पूरा ऐसे ही रहा है, पब्लिक ये समझते रहे कि आपके यू आर वेरी लेट, यू आर नॉट पंक्चुअल, और अल्लाह ताला एक मेरे को वाइल्ड शख्स बनाया जो लेट होने के बावजूद भी, पंक्चुअल नहीं होने के बावजूद भी आई वाज लिटिल बिट सक्सेस इन माय लाइफ। Okay, sir. At last, I would request you to address our future generation with your valuable advice. फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सारे एडवाइजेस हैं, बट जो आज के दौर की जो सबसे बड़ी जैसे आपके जो प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के साथ, वो है टाइम का इंतहाई जैसा आपके गलत इस्तेमाल, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ सभी लोग जानते हैं दैट इज़ वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि मोबाइल फ़ोन है। यकीनन मोबाइल फ़ोन आज के दौर की ज़रूरत है, जहाँ पर हम एआई के दौर में पहुँच चुके हैं, वहाँ पर जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का होना, इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जितनी इसकी ज़रूरत है उतना ही इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा लाइक स्टूडेंट को ये चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को ये चाहिए कि मैक्सिमम वक्त अपना फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड करें, जिनके पास दादा दादी उनके साथ वक्त गुजारे, नाना नानी उनके साथ वक्त गुजारे, और जो रिलेटिव्स है हमारे अपने चाहने वाले उनके साथ वक्त गुजारे, चाचा आए, मामू आए, मामी आए, कई लोग हैं, उनके साथ वक्त गुजारे। इसके साथ साथ बच्चे जैसे आपके जब मोबाइल फ़ोन से हम हटाने की बात करते हैं, तो कुछ हालात भी ऐसे पैदा करें बच्चों के लिए, ऐसे फैसिलिटीज उनके लिए दे ताकि बच्चे वो ग्राउंड में आए, मैदान में आए और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़े। और जिन बच्चों का फिजिकल फिटनेस बेहतर होता है, वो बच्चों को ऑटोमेटिकली मेंटल फिटनेस भी उनका उसी तरह का होता है। एक्सपर्ट्स की जैसे आपकी ये बात है, जो लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं वो लोग दिमागी तौर पर भी मजबूत होते हैं। आज के दौर में स्कूलों में सुबह 8 बजे से 8:30 बजे ये जो स्कूल शुरू होता है, तब से लेकर शाम के 6 से 7 बजे तक, बल्कि ट्यूशन्स एंड दूसरे प्रोग्राम्स को लेकर 9 बजे तक बच्चे बिजी हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स से भी, यानी औलिया तुलबा से, स्कूल मैनेजमेंट से, टीचर्स से भी, कि बच्चों को फिजिकल फिटनेस के मेंटेन करने के लिए उनको फिजिकल एक्सरसाइज, ग्राउंड में उतरना, मैदान में खेलना, भाग दौड़ करना, इसके मौके बच्चों को प्रोवाइड किए जाना चाहिए। और बच्चों को खुद भी ये समझना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन उनकी दुनिया नहीं है, उनकी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि वो अपने आप को अगर फिट रखना चाहते हैं तो मैदान में आइए। और बच्चों के मोटिवेशन के लिए एक बात ये बताना चाहूँगा मैं कि स्टिल वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। हफ्ते में कम से कम 2 दिन होते हैं, फिक्स डे हमारा फ्राइडे आफ्टर नमाज, इमीडिएटली हम ग्राउंड में जाते हैं। इस एज में भी आपके रेगुलर आपके हमारे गेम्स, फिजिकल फिटनेस के लिए भाग दौड़, ये तमाम चीज़ें होती हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो हम देखते हैं बच्चों के साथ, कुछ बच्चे जैसे आपके हमारे जैसा दौड़ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, बड़ा अफसोस होता है इसे जान देखकर। कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे अच्छा अपने आप को फिट रखे हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल, यंग जो न्यू जनरेशन हमारी, कि वो लोग जैसे आपके क्या वक्त का सही इस्तेमाल करें, और जैसे आपके नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ ग्राउंड में आए, मैदान में आए, भाग दौड़ करें। और अपने घरों में जैसे आपके जिस तरह लड़कियाँ पेरेंट्स का हाथ बटाती है, उसी तरह से बच्चे भी आपके घरों में काम करें माँ बाप के साथ साथ, उससे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात होते हैं। मैं अपने जब बचपन में था तो वालदा के साथ ज़रूरत पड़ती उनके साथ कपड़े भी धोता था, कहीं झाड़ू मारना वो भी काम करता था, हर वो काम मैं अलहमदुलिल्लाह में करा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे भी ये तमाम काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक शेर के साथ बात अपनी ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपके अशार 3 हो गया, मेरा यही शेर हुआ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। आपको बना था क्या ये शेर? मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Mashallah, sir. Thank you so much. So, dear viewers, I would like to conclude this interview
And I would like to tell you all that please set your goals sincerely and follow them, and please make sure that you put your foot in the right place. So in the future, in coming times, you will also be counted in such successful personalities. So inshallah, we will come again with another sitting with another topic and person. Till then, take care and love. Assalamu.